Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट एरोस्पेस फैसिलिटी ऑफ बोइंग आउटसाइड यूएसए इज लोकेटेड वेयर. तो सबसे बड़ी जो एरोस्पेस फैसिलिटी है, इंजीनियरिंग फैसिलिटी है, वो तो यूएसए में बोइंग की. लेकिन आउटसाइड यूएसए तो कहाँ पर आ जाती है? हमारे इंडिया में. इंडिया में भी कहाँ पर? बेंगलोर, कर्नाटका में. राइट. और इसी से रिलेटेड और चीज़ देखेंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राइट, एंड इवन केरला. तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया. जैसे फॉर एग्जांपल 8 अमृत प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 2000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किए गए. देन लार्जेस्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी ऑफ बोइंग आउटसाइड यूएसए बेंगलोर में. देन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई, तमिलनाडु. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर. अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी डीडी तमिल, दूरदर्शन चैनल तमिल भी यहाँ पर वापस से लॉन्च किया गया. इसका रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया गया है. राइट. चलिए नेक्स्ट. और केरला की बात करें तो केरला में इन्होंने 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया. केरला का ही आ जाता है कुसुम, केरला स्टार्टअप मिशन. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री MEITY. इन्होंने कभी MOU साइन किया किस कंट्री के साथ? फॉर द कॉर्पोरेशन ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं इंडियन स्टैक के बारे में. इंडियन स्टैक में क्या आ जाता है आपका? जैसे UPI, आधार कार्ड, ठीक है, फिर इसके बाद डिजिलॉकर सर्विसेज. तो ये बेसिकली क्या है, इंडिया की जो इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको कैटर करने के लिए हमने ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, APIs डेवलप किया है, जिससे क्या होगा, हम पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं. तो सिमिलरली अभी रिपब्लिक ऑफ क्यूबा ने टाइप किया MEITY के साथ और एक MOU साइन किया ताकि इंडियन स्टैक को इम्प्लीमेंट करके हम उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर कर सकें. ठीक है. तो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ अभी रिसेंटली इंडिया का ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर इटली के साथ भी अगर याद हो तो आपको किस लिए साइन हुआ था? स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, कल्चर एक्सचेंज के लिए, क्योंकि स्टूडेंट और हमारे टीचर्स, हमारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज देखने को मिलेगा. एक दूसरे के कल्चर को हम समझेंगे. नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं MEITY, इन्होंने MOU साइन किया रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के साथ ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ना कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं कि हम देखते हैं जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनमें छोटे बच्चे भी यहाँ पे एनरोल रहते हैं. तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को
कोई भी बच्चा जो कि 16 साल से कम उम्र का होगा वो एनरोल नहीं कर सकते हैं। ऐसी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई। रीजन बीइंग कि बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड में आ जाते हैं, राइट, प्रेशर इतना झेल नहीं पाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, फिर एग्जाम्स भी, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ काफ़ी सुसाइड के भी केसेस यहाँ पे देखने को मिले। इसीलिए कोचिंग सेंटर्स को यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है कि वो कोई भी बच्चा जो कि 16 साल से कम उम्र का होगा उनको वो कोचिंग सेंटर्स में एनरोल नहीं कर सकते हैं, और वो अगर एनरोल करते हैं तो वहाँ पे उनको 1 लाख रुपए तक का फाइन पर स्टूडेंट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, राइट। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है। इनके द्वारा रिसेंटली वर्चुअली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया फॉर आर्टिफिशियल रीफ्स। कहां पर लॉन्च किया गया? त्रिवंतपुरम, केरला में इसको लॉन्च किया गया, याद रखेंगे, राइट। तो पुरुषोत्तम रुपाला जी के द्वारा आर्टिफिशियल रीफ्स का एक प्रोजेक्ट कहां पर? त्रिवंतपुरम, केरला में इसको लॉन्च किया गया। इसका एम क्या रहेगा कि जो फार्मर्स की इनकम है ना उसको एनहेंस करना बाय एनहेंसिंग द फिश प्रोडक्शन इन द वाटर्स ऑफ केरला, राइट। रीफ्स को इंक्रीज करके आर्टिफिशियल रीफ्स की मदद से जो वहां पे फिशेस की पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना, जिससे इन टर्म्स क्या होगा, जो आपकी फिशिंग इंडस्ट्री है उसमें बूस्ट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरे आपकी फिशिंग कर पाएंगे, ज़्यादा फिशेस को कैच करेंगे, उससे क्या होगा, उनकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यही आइडिया माइंड में रखते हुए उन्होंने रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया ऑफ आर्टिफिशियल रीफ्स इन त्रिवंतपुरम, केरला। ठीक है, फिर ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है मिलके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर इसको लॉन्च किया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ICAR का आर्म रहेगा जो कि है सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। 13.02 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने की बात की गई फॉर आर्टिफिशियल रीफ्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामलला जी का अभी एक आइडल, एक स्टैचू यहाँ पर लॉन्च किया गया। कहाँ पर अनवेल किया गया? राम जन्मभूमि मंदिर में, जो कि अभी अयोध्या यूपी में इनॉग्रेट किया गया। कॉन्ग्रेशन सेरेमनी थी इसकी रिसेंटली 22 जनवरी को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे है, करेक्ट। पूरी देश में यहाँ पे लोगों ने बहुत उत्साह से सेलिब्रेट किया राम जी की आने का। राम जी के लल्ला आइडल जो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। स्कल्पचर कौन रहेंगे? राम लल्ला जी के आइडल स्टैचू। आप इसको स्टैचू देख सकते हैं यहाँ पे इस आइडल को। ये जो स्कल्पचर है राम लल्ला जी का, राइट, ये स्कल्पचर कौन रहेंगे, किन्होंने इसको तराशा है? तो वो है अरुण योगीराज, राइट। अरुण योगीराज के द्वारा ये स्कल्पचर यहां पे बनाया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अयोध्या यूपी में ये अभी रिसेंटली अनवेल किया गए थे राम लल्ला जी का स्टैचू। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर अभी किन कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली, एक्सरसाइज खंजर। इस एक्सरसाइज का 11th एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाता है दूसरा क्वेश्चन की लोकेशन, कहां पर हुई थी ये एक्सरसाइज? तो बकलो, हिमाचल प्रदेश में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली एट स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल इन बकलो, हिमाचल प्रदेश। 22 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी बकलो, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसी के साथ साथ एक चीज याद रखेंगे, इंडिया की किस रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? एंड यहाँ पे 20 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द रेजिमेंट जो कि है द पैराशूट रेजिमेंट। पैराशूट रेजिमेंट, करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज खंजर 11वां एडिशन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में, और पैराशूट रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन आर्मी साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं, पीएम मोदी के द्वारा अभी एक स्कीम लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना बेसिकली क्या है? ये एक रूफटॉप सोलर स्कीम है। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पर
छत पर सोलर पैनल्स लगाना ताकि वो सोलर एनर्जी जनरेट कर सके। ये यहाँ पर टारगेट रहेगा इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का, राइट। एंड यहाँ पर 40 गीगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी जनरेट करने की बात की जाएगी अंडर दिस स्कीम, ताकि जो मिडिल हाउस होल्ड इनकम है, राइट, उसको कम किया जा सके। बिकॉज जो बिजली का बिल है अगर वो बढ़ता है तो सोलर एनर्जी के पैनल से ये उसको कैटर किया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट एयरबस A350-900 फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई वॉज लॉन्च्ड बाय विच एविएशन कंपनी। तो इंडिया का पहला एयरबस फ्लाइट A350-900 एयरबस की जो पहली फ्लाइट थी बैंगलोर से लेके मुंबई तक थी। बैंगलोर के कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक थी। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस एविएशन कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो वो रहेगी एयर इंडिया के द्वारा इसको यहां पे लॉन्च किया गया था, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सर्विसेज का स्कोप जो एक्सपेंड कर दिया है IFSC जिफ्ट सिटी, एंड यहाँ पे 4 एडिशनल सर्विसेज लाने की बात की गई है, राइट। हम जानते हैं काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस को जो यहाँ पे जिफ्ट सिटी में ऑपरेट करेंगी। एंड जिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में। 4 एडिशनल सर्विसेज जो लॉन्च की जाएंगी वो है फाइनेंशियल क्राइम कंपाइलेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। फिर जो फाइनेंशियल क्राइम्स कंपाइलेंस है ना, ये इंक्लूड करेगा आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को, काउंटरफिटिंग केसेस को, राइट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स भी ले जाएंगे। एंड यहाँ पे जो 4 बिग फर्म्स हैं जैसे डेलॉयट, KPMG, EY जो कि है अर्न्स्ट एंड यंग, एंड प्राइस वाटर कूपर्स, राइट, ये यहाँ पे कुछ अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगी इन जिफ्ट सिटी। अगर मैं जिफ्ट सिटी की बात करूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप CEO यहाँ पे कौन रहेंगे? तपन रे, राइट। चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पर? डॉक्टर हसमुख आदिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग विच कंट्री? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट कर लेंगे, राइट। अभी रिसेंटली इंडिया ने सरपास कर दिया है किसको? हांगकांग को, टू बिकम द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो कैपिटलाइजेशन है वो कितनी रहेगी? 4.33 ट्रिलियन की इन टर्म्स ऑफ इक्विटी सेगमेंट, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूं हांगकांग की, इनकी कितनी है? 4.29 ट्रिलियन डॉलर की, और इंडिया अब 4th पोजीशन पे आ गया है। हांगकांग 5th पे चला गया है। टॉप पर कौन है? USA। सेकंड पे कौन आ जाता है? चाइना। थर्ड पर कौन है? जापान। और 4th पर अब कौन आ गया है? हमारा इंडिया। नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ओवरटेक्स हांगकांग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनवेल किया एक क्वाइट सुपरसोनिक जेट नोन एज सन ऑफ कॉनकॉर्ड? तो ये सन ऑफ कॉनकॉर्ड अभी किसके द्वारा अनवेल किया गया है, राइट। और हम जानते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड की से ज़्यादा चलता है तो एक सोनिक बूम होता है वहाँ पे, एक उस हवा के फटने की आवाज़ आती है, उसको सोनिक बूम कहते हैं। तो अभी रिसेंटली कौन सा वो एयरक्राफ्ट रहेगा जो कि वो सोनिक बूम नहीं करेगा, राइट। बेशक वो स्पीड की साउंड की स्पीड से ज़्यादा चलेगा बट उसमें सोनिक बूम नहीं देखने को मिलेगा। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा ये फाइटर जेट यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसका नाम रहेगा X-59 सुपरसोनिक जेट, क्वाइट सुपरसोनिक जेट, राइट। क्वाइट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है। 1.5 मैक की स्पीड से ये ट्रेवल करेगा। फिर यही याद रखेंगे आपका 99.7 फीट लॉन्ग रहेगा लेंथ वाइज, एंड 25.9 फीट वाइज इसका जो विंग स्पैन रहेगा वो रहेगा, राइट। आप ये देख सकते हैं ये है नया X-59 सुपरसोनिक, क्वाइट सुपरसोनिक जेट जिसको सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हैं। नासा के द्वारा इसको यहां पे लॉन्च किया गया। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे? बिल नेल्सन। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है एंड 1958 में इसको फाउंड किया गया। नेक्स्ट,
CoreOver.ai, इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस जनरेटिव एआई भारत जीपीटी को लॉन्च किया। अगर भारत जीपीटी अगर आपको याद हो तो जियो किसके साथ मिलकर प्लान कर रहा था? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, राइट। तो अभी CoreOver प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी को। एंड ये जो भारत जीपीटी है ना 14 इंडियन लैंग्वेजेस में रहेगा अक्रॉस वेरियस चैनल्स, करेक्ट। एंड जो प्रोसेस करेगा वीडियोस को, टेक्स्ट को एंड आपके वॉइसेस को, ठीक है। फिर ये जो CoreOver है बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया है। भारत जीपीटी 14 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए रहेगा। एंड अब लेट मी शो यू, 14 इंडियन लैंग्वेजेस के रहेगा इनका वॉइस मॉडलिटी, और जो टेक्स्ट मॉडलिटी रहेगी वो आपकी 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। इन्होंने भाषिनी के साथ टाई अप किया। भाषिनी क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो ये आपका CoreOver है ये काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंडिया में। आने वाले टाइम में आप देखेंगे नॉट जस्ट इवन भारत जीपीटी, आने वाले आप टाइम देखेंगे हर चीज़ में आपका एआई को इनबिल्ट किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और अभी जो हम देख रहे हैं इतनी सारी जो जॉब लॉसेस हमें देखने को मिल रही हैं, राइट, उसका एक फैक्टर भी यही है कि एआई को जब हम अपने सेगमेंट में, अपने सॉफ्टवेयर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो काफ़ी सारे रोल्स ऐसे हो जाते हैं जो रिडंडेंट हो जाते हैं, जिनकी इन द लॉन्ग रन नीड नहीं रहती। तो उसी की वजह से यहाँ पर हमें इतनी जॉब लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया स्वास्तिक साईराज एंड चिराग रेड्डी। इन्होंने रिसेंटली अभी सिल्वर मेडल जीत लिया है इन मेंस डबल ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे, अभी रिसेंटली स्वास्तिक साईराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किसमें? इंडिया ओपन 2024 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था अभी 16 से 21 जनवरी के बीच में। यहीं पे अगर हम देखें विनर्स कौन रहे मैन कैटेगरी में इंडियन ओपन में, तो शी यू क्यू चाइना के विनर रहे मेंस कैटेगरी में। वीमेन कैटेगरी में ताई जू यिंग, ये चाइनीज हैं, ये भी यहाँ पर विनर रहे इन मैन कैटेगरी, करेक्ट। और यहाँ पे स्वास्तिक साईराज एंड चिराग रेड्डी, स्वास्तिक साईराज एंड चिराग शेट्टी, इनके क्या पोजीशन रही? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता यहाँ पे इन मेंस डबल कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। तो अभी कनाडा के फॉर्मर पोल वॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन शॉन बार्बर, इनका निधन हो गया 29 की एज में, टेक्सास यूएसए में इनका निधन हो गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। अभी हमने पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया, 23 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया। पहली बार पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया गया था 2021 में। ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं पराक्रम दिवस। मार्क करके चलेंगे 2024 में हमने 127th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एंड इन्हीं के बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं पराक्रम दिवस। इन्होंने जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की इंडिपेंडेंस में, उसको सम्मानित करने के लिए हम ये पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे जो एजुकेशन है उसको बेटर क्वालिटी से प्रोवाइड कराने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड ओवरऑल बोलें तो जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया, माई स्कूल माई प्राइड। अपना विद्यालय कैंपेन के अंडर इसको लॉन्च किया गया अंडर NEP 2020। एंड यहाँ पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे एक ऑफर सा दिया गया ताकि वो जो स्कूल्स है ना, इंडिपेंडेंट स्कूल्स को आप अडॉप्ट कीजिए एंड उनको फिर यहाँ पे ग्रो कीजिए एंड स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्प कीजिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल की बिल्डिंग को, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्कूल की बिल्डिंग को हायर ले सकते हैं, राइट, एंड उसके बेसिस पे वहां पर उसको डेवलप करें, वहां पे बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ये यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी माई स्कूल माई प्राइड। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये स्कीम लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी विजिट किया टू वेरियस स्टेट एंड यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, राइट। नेक्स्ट, MEITY इन्होंने एक MOU साइन किया रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के साथ फॉर कॉर्पोरेशन ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दैन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इशू किए नए रूल्स फॉर कोचिंग सेंटर्स, नो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही। दैन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट फॉर आर्टिफिशियल रीफ्स इन केरला, ताकि जो फिशरमैन है केरला के वहाँ पर उनकी इनकम को सप्लीमेंट किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके।
देन पीएम मोदी ने अनवेल किया रामलला आइडल, कहां पर? राम जन्मभूमि मंदिर में एट अयोध्या यूपी। कब? 22 जनवरी को। देन एक्सरसाइज खंजर, ये 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी। कहां पर हुई? बकलो, हिमाचल प्रदेश में हुई। देन पीएम मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये एक नया रूफटॉप सोलर स्कीम है जिसके अंडर 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर हाउस होल्ड्स को सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराने की बात की गई। देन एयर इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एयरबस A350-900 फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट IFSC गिफ्ट सिटी एंड 4 अदर सर्विसेज को ऐड करने की यहाँ बात की गई। देन इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई बाय ओवरटेकिंग हांगकांग। करेक्ट। एंड टॉप पर कौन है? USA, चाइना, फिर आ जाता है जापान, एंड 4th पर है इंडिया, और 5th पे है हांगकांग। ठीक है। देन नासा ने अनवेल किया X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट, जिसको सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हैं। 1.5 मैक की स्पीड पे ये रन करेगा। देन CoreOver.ai, इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस जनरेटिव भारत GPT को लॉन्च किया। इंडिया के स्वास्तिक साईराज एंड चिराग सेठी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024। कनाडा के फॉर्मर पोल वॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन शॉन बार्बर, इनका निधन हो गया। पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं 23 जनवरी को, एंड पहली बार 2021 में ऑब्जर्व किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। देन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा सेशन लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम डेली बेसिस पे लाते रहें तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। करेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। इन नवंबर, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट देयर एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। तो याद रखेंगे वो कौन सी कंट्री रहेगी? भूटान ने अपनी एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को भी रिसेंटली स्टरलाइज कर दिया है, वैक्सीनेट कर दिया है। कौन सी रहेगी? भूटान। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली, या विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला फॉर 100% FDI इन द डिफेंस सेक्टर? वो रहेगी साब एबी। साब एबी कहाँ की कंपनी है? ये स्वीडिश कंपनी है, राइट। एंड इनको अभी रिसेंटली 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का यहाँ पे FDI अप्रूवल मिला टू, करेक्ट, ताकि FDI ये डिफेंस सेक्टर में पैसा ला सके एंड इन्वेस्ट कर सके। किस कंट्री में एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इंडियन मिशन टू द एशियन नेशन? तो याद रखेंगे साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में हमने ऑब्जर्व किया ये एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल, राइट। और बेसिकली क्या एम रहेगा इस फेस्टिवल का? कि मिलेट्स का यूज़ को बढ़ाना एंड मिलेट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स के यूज़ को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए ही हमने ये ऑब्जर्व किया एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ऑब्जर्व कराया गया। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी EHang 216S? तो ये EHang 216S किस कंट्री के द्वारा अप्रूव की गई, जो कि वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग टैक्सी रहेगी? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली द मुंबई डिवीजन ऑफ द सेंट्रल रेलवेज कमीशन BPAC सिस्टम। और ये BPAC सिस्टम क्या है? कि जो आपके ब्लॉक्स होते हैं रेलवेज के, एक्सेल्स होते हैं रेलवेज के, उनको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ताकि कोई भी दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर ना आए और कोलिजन को अवॉइड किया जा सके। तो BPAC सिस्टम लॉन्च किया गया मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवेज के द्वारा। BPAC की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ब्लॉक प्रोवीन बाय एक्सेल सी से काउंटर आ जाएगा। तो BPAC की फुल फॉर्म पूछी गई आपसे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया, स्टेटिंग दैट जो क्लीन एनर्जी के सेक्टर में जो जॉब्स की जनरेशन हुई है ना, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द जॉब्स जो कि फॉसिल फ्यूल की उस सेक्टर में डेवलप की गई। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप? तो रशिया ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, क्योंकि नेटो यहाँ पे रशिया के बॉर्डर्स पे आगे बढ़ रहे थे, जिसकी उससे उनको सिक्योरिटी इशू लगा एंड उन्होंने इस ट्रीटी से अपना विड्रॉ कर लिया। करेक्ट। एंड फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो ट्रीटी है 23 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के द्वारा साइन की गई थी, बिलोंगिंग टू नेटो एंड वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
1990 में ये साइन हुई थी, पेरिस फ्रांस में साइन हुई थी, करेक्ट। नेक्स्ट, एंड ये ट्रीटी थी क्या बेसिकली कि रशिया एंड नेटो, बेसिकली यूएसए हम बोलें तो यूएसए एंड रशिया यहाँ पर अपना फोर्सेस को नहीं लाएगी एक दूसरे के पास, बिल्ड फोर्स नहीं करेगी कि लड़ाई हो सके। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन, करेक्ट। ये रिपोर्ट रिलीज की गई एंड with key highlighting that India is among the top countries with high income and highest wealth inequality despite rapid economic growth। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहेगी? सबसे पहले तो याद रखेंगे ये रहेगी आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, और इन्होंने बताया कि इंडिया में हाई इनकम है, राइट, एंड हाईएस्ट वेल्थ इनक्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है, करेक्ट, इंडिया में। जबकि हम इंडिया अगर अभी देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है जो कि ग्रो कर रहा है, एंड वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इवन द डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशंस के साथ टू क्रिएट न्यू स्टेम कलेक्शन एंड फर्स्ट डे एनवेलप्स टू ऑनर मैरी क्यूरी ऑनर 156th बर्थ एनिवर्सरी 7 नवंबर को जो ऑब्जर्व की जाती है। तो सबसे पहले याद रखेंगे मैरी क्यूरी का बर्थ एनिवर्सरी कब? 7 नवंबर को, करेक्ट। और इन्हीं के दौरान किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इन्हीं के लिए कलेक्शन ऑफ स्टेम्स को भी लॉन्च किया था? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहाँ पर IAEA के द्वारा यहाँ पर कमेमोरेटिव स्टेम्स लॉन्च किए गए थे ऑनर 156th बर्थ एनिवर्सरी जो कि 7 नवंबर को थी। याद रखेंगे मैडम क्यूरी ने ही रेडियम को डिस्कवर किया था जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, करेक्ट। याद रखेंगे मेन चीज़ की रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा। और यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, मैडम क्यूरी वो व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, WHO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई नवंबर में। इनके इस रिपोर्ट के हिसाब से 7.5 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब्स वर डायग्नोज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस एंड 2022 में ये डाटा रिलीज किया गया, और ये डाटा 2023 में रिलीज किया गया और बताया गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस से जो लोग इन्फेक्ट हुए थे वो है 7.5 मिलियन 2022 में, करेक्ट, सिंस 1995। एंड कोविड-19 की वजह से भी हमें ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में राइज देखने को मिला। ट्यूबरक्लोसिस होता है आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU इंडिया के साथ फॉर कॉर्पोरेशन ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट? तो इंडिया ने नीदरलैंड के साथ अभी टाइप किया, एक MOU साइन किया ताकि जो क्वालिटी है मेडिकल प्रोडक्ट्स की उस पर ध्यान दिया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की रिसर्च इन जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल एस्टिमेटिंग दैट अप्रॉक्सीमेटली 1 in 3 नॉन मेलानोनियन स्किन कैंसर डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू ऑक्यूपेशनल सन एक्सपोजर? जो ये नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर से जो डेथ होती है ना, इसमें से 1 of the 3 जो डेथ्स होती है ना वो सन एक्सपोजर से होती है। ये डाटा किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। एंड सन की बात करें तो सन में देखो UV रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके एक्सपोजर से हमें स्किन पे कैंसर भी देखने को मिल सकता है और अलग स्किन डिजीज भी हो सकती है। UNEP ने एक 14th एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट को रिलीज किया गया एंड एज पर द 14th एडिशन ऑफ द एमिशन गैप रिपोर्ट वर्ल्ड मस्ट रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एटलीस्ट बाय 28 to 42% रिस्पेक्टिवली, ताकि वो 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस में कटौती देख सके, लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो किस साल तक हमें ये रिडक्शन करना पड़ेगा? तो 2030 तक हमें 28 से 42% का रिडक्शन लाना पड़ेगा इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नेक्स्ट है अंगोर वाट। ये अभी वर्ल्ड का 8th वंडर बन गया है, वर्ल्ड ऑफ द वंडर, 8th वर्ल्ड ऑफ द वंडर अंकोर वाट। पूछा जा रही है अंकोर वाट कहाँ रहेगा? तो ये कंबोडिया में है। नेक्स्ट, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन जिन्होंने एक MOU साइन किया इंडिया के साथ ताकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा सके। हम जानते हैं गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है सेमीकंडक्टर्स के लिए, राइट। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बेटर करने के लिए इंडिया ने किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया। Who recently unveiled a new operational framework for building climate resilient and low carbon health systems to tackle challenges
पोस्ट बाय अ रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट। तो याद रखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली एक नया फ्रेमवर्क रिलीज किया गया कि कार्बन हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिड्यूस करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने के लिए एंड अपने क्लाइमेट को बेटर बनाने के लिए ये रिलीज किया गया नया फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एन ओपन डाटा प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन साइंटिफिक डाटा एसेसिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकर्स, मेंबर स्टेट्स, एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो रहेगी आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किए 2 अग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट यूथ मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो देखो हम जब काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इंडिया एंड इटली के बीच में ये MOU साइन हुआ ताकि जो यूथ मोबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम, साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम हो सके ताकि एक बेटर कल्चर एक्सचेंज हो सके। नेक्स्ट, किस सिटी में अल डाफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया नवंबर में। तो ये कहाँ पर रहेगा? अल डाफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट किस सिटी में रहेगा? तो ये अबू धाबी UAE में रहेगा। राइट, मार्क करके चलेंगे, अबू धाबी UAE में। एंड ये पावर प्लांट 2 लाख से भी ज़्यादा घर को यहाँ पर पावर प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिर होमवर्क सेक्शन पर। पहला, what is the primary objective of strategic interventions for green hydrogen transition? Next, what is the IUCN status of Great Indian Bustard? तीसरा, where was the 19th Non-Aligned Movement Summit held? चौथा, Bureau of Public Research and Development that was recently news comes under which ministry? And पांचवा, which of the following is the highest point of Aravalli range? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड इवन इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, हर जगह इसको शेयर कर दो एंड उनको बताओ अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे करंट अफेयर्स एकदम इंटरेस्टिंग और ईजी वे में हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं ताकि बच्चों के समझ भी आए एंड चीज़ें याद रहें और डे टू डे बेसिस पे चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.